हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी शेयर एंड कमेंट करें। अगर आपको इस लेक्चर के एवं अन्य लेक्चर्स के स्कैन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1, show that the function fx equal to this is not differentiable at x equal to 2, means left hand derivative not equal to right hand derivative. So first find left hand derivative. Is equal to, first write formula, limit h tends to 0 f c minus h minus fc upon minus h. This is formula. Now find value of left hand limit at indicated point 2. So limit h tends to 0 f 2 minus h, point क्या आपका 2 है, minus f2 upon minus h. अब now simplify. Limit h tends to 0 f2 minus h means x की जो वैल्यू है, this is x, fx, x is less than 2, 2 में से कुछ माइनस करेंगे तो less than 2, यानी चूज दिस फर्स्ट फंक्शन fx इक्वल टू x माइनस 1, दिस इज वैल्यू ऑफ fx और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, 2 माइनस h, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 2 माइनस h, तो 2 माइनस h माइनस 1, x के प्लेस पे 2 माइनस h माइनस 1 माइनस f2, f2 की वैल्यू किससे मिलेगी, लोअर फंक्शन से, x इक्वल टू 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे अपन 2, सो 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन माइनस h. अब नाउ सिंप्लीफाई, दिस इज सिंपल क्वेश्चन ऑफ लिमिट 2 माइनस 1, 1 माइनस h माइनस 2 टू जा 4, 4 माइनस 3 1 अपॉन माइनस h, 1 और 1 कैंसिल. लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h कैंसिल, सो ओनली वी गेट प्लस 1 and limit of constant function 1 is 1. Now find right hand derivative. So formula for right hand derivative, limit h tends to 0 f c plus h minus fc upon h. So right hand derivative is equal to limit h tends to 0, पॉइंट क्या आपके पास 2, सो f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h मीन्स मोर देन 2, यानी चूज लोअर फंक्शन, ये फंक्शन चूज करना है. सो 2 एज इट इज और x के प्लेस पे क्या आएगा, 2 प्लस h, तो राइट इन ब्रैकेट माइनस 3 माइनस f2, f2 की वैल्यू भी इसी फंक्शन से मिलेगी, 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन h. अब नाउ सिंप्लीफाई, लिमिट h टेंस टू 0, 2 टू जा 4 प्लस 2h माइनस 3, 4 माइनस 3 1, सो माइनस 1 अपॉन h is equal to limit h tends to 0, 4 minus 4 cancel, only 2h upon h, h और h cancel and limit of constant function 2 as it is 2. Left hand derivative is 1 and right hand derivative is 2, therefore left hand derivative is not equal to right hand derivative at x equal to 2. Therefore fx is
not differentiable at x equal to 2. Next problem. Show that fx equal to x square is differentiable at x equal to 1 and find f dash 1. So first find left hand derivative at x equal to, first write formula, left hand derivative equal to limit h tends to 0 f c minus h minus f c upon minus h. अब now write left hand derivative at x equal to 1. अगर ये भी लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f c के प्लेस पे 1 लिख देंगे 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h. ये एक ही फंक्शन है, चूज़ करना ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, सीधी वैल्यू निकालनी 1 माइनस एच की. तो 1 माइनस एच की वैल्यू यहाँ रख दो. एफ 1 माइनस एच इक्वल टू 1 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस f1 मीन्स 1 स्क्वायर अपॉन माइनस एच. अब दिस इज सिंपल क्वेश्चन ऑफ लिमिट सिंप्लीफाई. 1 स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस एच. 1 और 1 कैंसिल. Taking common h from numerator, so we get h minus 2 upon minus h. h और h cancel. अब now put h equal to 0, so we get minus 2 upon minus 1, so plus 2. So left hand derivative at x equal to 1 is 2. Now find right hand derivative. Is equal to limit h tends to 0 f c plus h minus f c upon h. Now find right hand derivative at x equal to 1. Is equal to limit h tends to 0 f1 plus h minus f1 upon h is equal to limit h tends to 0 f1 plus h means 1 plus h whole square fx equal to x square, so f1 plus h equal to 1 plus h whole square minus 1 square upon h. Now tell me square of this. 1 plus h square plus 2h minus 1 upon h. Taking common h from numerator, so we get h plus 2 upon h. h और h cancel. Now put h equal to 0, so we get 2. Left hand derivative at x equal to 1 is 2 and right hand derivative at x equal to 1 2. Since left hand derivative at x equal to 1 is equal to right hand derivative at x equal to 1, both are equal, therefore fx is differentiable at x equal to 1, therefore f dash 1 is equal to 2. Next problem. If fx equal to this is everywhere differentiable, find the values of a and b. Now we have to find two unknown constant. Function is differentiable means left hand derivative equal to right hand derivative. So we get only one equation. On the basis of one equation we can't find value of two unknown constant. So one more equation is required. For other equation we use one of the formula. Every differentiable function is continuous. अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है मीन्स कंटिन्यूस भी है. क्लियर? सो वी फाइंड टू इक्वेशंस. वी विल फाइंड टू इक्वेशंस. सिंस fx is differentiable
at x equal to 1 implies fx is continuous at x equal to 1. Therefore left hand limit is equal to right hand limit. Function is continuous, so left hand limit equal to right hand limit is equal to value of fx at x equal to 1. All three are equal. Now formula for left hand limit, limit h tends to 0 f a minus h means 1 minus h equal to limit h tends to 0 f1 plus h is equal to f1. f1 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी अपन को? अपर फंक्शन से. x इक्वल टू 1, सो 1 प्लस 1 स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 और प्लस a. अब नाउ राइट लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0. चूज करो फंक्शन. 1 माइनस h मीन्स लेस देन 1 और x की वैल्यू 1 से लेस देन है, यानी फर्स्ट फंक्शन चूज करना है. तो 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस a इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0. x इज मोर देन 1 यानी चूज लोअर फंक्शन. सो b और x के प्लेस पे क्या आएगा? 1 प्लस h प्लस 2 और इक्वल टू 4 प्लस a. नेक्स्ट स्टेप, पुट h इक्वल टू 0. तो क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस 3 प्लस a इज इक्वल टू लिमिट, सॉरी, नाउ पुट h इक्वल टू 0, सो b प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस a. दिस क्वांटिटी आल्सो 4 प्लस a, दिस आल्सो 4 प्लस a, so only take these two. So b plus 2 equal to 4 plus a. So next step, b is equal to 2 plus a. So we get one of the equation in terms of a and b. Give equation number 1. Okay. Now since fx is differentiable at x equal to 1, therefore left hand derivative is equal to right hand derivative. Implies, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे अपन लिखते थे c माइनस एच. अब हम इस बार फार्मूला लिखेंगे, काफ़ी बार लिख चुके हैं. c कितना आपके पास 1 है, सो 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन प्लस एच. अब नाउ सिंप्लीफाई, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच मीन्स लेस देन 1 और x की वैल्यू 1 से लेस देन है, तो कौन सा फंक्शन चूज करेंगे? अपर फंक्शन. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे अपन? 1 माइनस एच. तो 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच प्लस a अपॉन माइनस h. और यह मैं भूल गया f1 की वैल्यू लिखना, माइनस f1. दिस इज वैल्यू ऑफ f1 माइनस h. 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच प्लस a माइनस. अब वैल्यू ऑफ f1 की वैल्यू भी आपको इसी से मिलेगी, x इक्वल टू 1, सो 1 प्लस 3 प्लस a इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h मीन्स मोर देन 1. मोर देन 1 की वैल्यू किससे मिलेगी? इससे. सो b और ब्रैकेट में 1 प्लस h, जहाँ जहाँ एक समय क्या रखेंगे अपन? 1 प्लस h प्लस 2 माइनस f1 की वैल्यू किससे मिलेगी? अपर फंक्शन से. 1 प्लस 3 प्लस a अपॉन h. नेक्स्ट स्टेप, सिंप्लीफाई, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच होल स्क्वायर, सो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h
प्लस 3 माइनस 3h प्लस a माइनस 4, 1 और 3 4, सो माइनस 4 माइनस a अपॉन माइनस h, प्लस a और माइनस a कैंसिल, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ओपन द ब्रैकेट, b प्लस bh प्लस 2 माइनस 4 माइनस a अपॉन h. नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर एज इट इज, माइनस 2h और माइनस 3h माइनस 5h, 1 और 3 4, 4 माइनस 4 कैंसिल, अपॉन माइनस h, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, bh, b प्लस bh प्लस 2 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 2, सो माइनस 2 माइनस a अपॉन h. नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन, सो वी गेट h माइनस 5 अपॉन माइनस h, h और h कैंसिल, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0. अब नाउ जैसे इक्वेशन 1 b इक्वल टू a प्लस 2, सो इन प्लेस ऑफ b वी कैन राइट a प्लस 2, a प्लस 2 प्लस bh, इसको एज इट इज रखो, y सामने दिख रहा है क्योंकि जैसे अपन b की जगह a प्लस 2 रखेंगे तो ये और आपस में कैंसिल हो जाएगा, डेट्स वाई डोंट चेंज दिस, a प्लस 2, a और a कैंसिल और 2 और 2 कैंसिल. यदि आप b की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो आंसर a कहाँ पहले आ जाएगा और b बाद में आ जाएगा. अब नाउ पुट h इक्वल टू 0, सो वी गेट माइनस 5 अपॉन माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू. नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0, bh अपॉन h, h और h कैंसिल, एंड लिमिट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज एज इट इज कांस्टेंट. So next step, 5 equal to b. So we get value of b. Now put b equal to 5 in equation number 1. So a equal to 5 minus 2, 3. और यदि आप यहाँ पे भी b की वैल्यू रख देते हैं a प्लस 2, तो आपको क्या मिल जाता है, a प्लस 2 इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू 3 पहले मिल जाती है और b बाद में 5 मिल जाता है आपको. नेक्स्ट प्रॉब्लम, discuss the differentiability of fx equal to mod x minus 1 plus mod x minus 2. Whenever more than one modulus functions are there, तो हम उसको सोल्व कैसे करेंगे. fx equal to mod x minus 1 plus mod x minus 2. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. सो फर्स्ट फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेंगे, जितने भी क्वांटिटी है मॉडुलस फंक्शन उसको 0 के इक्वल कर देते हैं, तो वी गेट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2. These two numbers divide complete number line into 3 parts, less than 1, between 1 and 2 and more than 2. अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है इस फॉर्म में. फर्स्ट केस अपन ले रहे हैं, x इज, बस मैं उधर ड्रॉ कर देता हूं, वन एंड 2. फर्स्ट केस x इज लेस देन 1. अब यहाँ पे लेस देन 1 आएगा, इक्वल टू साइन भी आएगा, डाउट रहेगा, आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन. 1 इज लेस देन x लेस देन 2, और थर्ड केस क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 2. अब फर्स्ट केस x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 यानी 1 से स्मॉलर नंबर अपन यहाँ पे ले रहे हैं, यानी 0.5 और नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, मतलब अंदर की जो क्वांटिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी. और मोड x माइनस 1 इज नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव कैसे करते हैं, मोड पॉजिटिव कैसे करेगा, माइनस से इंटू कर देगा, सो माइनस x माइनस 1.
अगेन एक्स इज लेस देन 1, मतलब ये क्वांटिटी भी क्या है, नेगेटिव है। तो बिना विदाउट मोड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -x - 2। अब यहाँ पे इसके साथ साइन क्या आएगा, इक्वल टू अगर अपन लेते हैं तो x = 1 पे क्या आएगा, 1 - 1 0। 0 तो क्या होता है, नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी अपन इसके साथ 1 नहीं ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कौन साइन आएगा, x लेस देन 1। अब सेकेंड केस, x इज ग्रेटर देन 1। अगर x ग्रेटर देन 1 है मतलब 1 पॉइंट समथिंग 1.0001, तो जो क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और इफ दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव यानी मोड लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अपन इक्वल टू भी ले लेते हैं तो x = 1 पे भी क्या आएगा, 0। 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो इसको अपन पॉजिटिव में इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू साइन आएगा सर, प्लस x लाइज बिटवीन 1 and 2, एनी नंबर बिटवीन 1 and 2 यहाँ पे रखो, 1.5 - 2 माइनस पॉइंट यानी नेगेटिव आ रहा है। अब इसको पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, -(-) करके लिख देंगे। अब 2 के साथ इक्वल टू साइन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अपन एनी नंबर बिटवीन 1 and 2 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और जैसे अगर अपन 2 इंक्लूड करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी अपन 2 के साथ क्या लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। अब थर्ड केस, x इज ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 में क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 2 देन दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, सो मोड इज नॉट रिक्वायर्ड। ग्रेटर देन 2 पे भी ये पॉजिटिव आएगा, सो मोड इज नॉट रिक्वायर्ड। सो x - 2, और 2 रखने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 2 को अपन इंक्लूड कर सकते हैं इसमें कि 2 - 2 0, यानी नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी उसको पॉजिटिव में काउंट कर लेंगे। और मोर देन 2 पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस तरह से अपन ब्रेक करेंगे मोड को। अब नाउ सिंप्लीफाई, अब इसको थोड़ा डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिख देना, -x और -x -2x, माइनस इंटू -1 +1 और +2, तो क्या आएगा, +3। x इज लेस देन 1, x - x कैंसिल, और -1 + 2 यानी क्या आएगा, +1। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, x और x 2x -3 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब दिस इज सिंपल क्वेश्चन, वी हैव टू चेक दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो कहाँ चेक करेंगे अपन, 1 पे और 2 पे, क्योंकि फंक्शन किस पे ब्रेक हो रहा है, एक तो 1 पे ब्रेक हो रहा है और 2 पे ब्रेक हो रहा है। सो केस फर्स्ट, एट x = 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 पे चेक करें, यानी क्या आएगा यहाँ पे, c - h, यानी 1 - h -f1 अपॉन -h। नाउ चूज फंक्शन। अब फंक्शन चूज करो, कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, 1 - h यानी लेस देन 1, यानी फर्स्ट फंक्शन। सो -2 x के प्लेस पे लिखेंगे 1 - h +3 -f1। f1 की वैल्यू किससे मिलेगी आपको, मिडिल फंक्शन से, तो f1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन -h। मोर सिंप्लीफाई इज इक्वल टू -2 लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 + 2h +3 -1 अपॉन -h, लिमिट h टेंड्स टू 0, -2 और -1 -3 और +3 कैंसिल, सो वी गेट 2h अपॉन -h, h और h कैंसिल, एंड लिमिट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन -2 इज -2। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 + h -f1 अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब वैल्यू ऑफ f1 + h, वैल्यू ऑफ x इज मोर देन 1, और मोर देन 1 मतलब बिटवीन 1 and 2, उस केस में fx की वैल्यू कितनी है, 1 है, और एट x = 1 वैल्यू कितनी है, 1 ही है। सो 1 - 1 = 0, और 0 अपॉन एनी नंबर 0, और 0 की लिमिट कितनी होगी, 0। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
is not equal to right hand derivative. Therefore fx is not differentiable at x equal to 1. इसी तरह से आप x equal to 2 पे भी चेक कर सकते हैं, और इसको चेक करके आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे मुझे कि आपका जो फंक्शन है वो x equal to 2 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.